So yesterday we had studied about the capacitor. Okay, so what is principle of capacitor? कैपेसिटेंस मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है कि द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू V, so Q equals to CV and C equals to Q upon V. So Q upon V, the ratio of Q and V is constant everywhere. Therefore, C is equals to this constant is C and it is called capacitance. Okay, capacitance of a conductor is defined as the charge required to raise its potential through one unit. In the last class, I had not told you about the symbol of capacitance. Okay, so this is the symbol of capacitance. There are two plates given. Okay, there are two parallel plates, and this is for connection terminal, positive terminal and negative terminal of batteries. Okay, and this is for symbol of capacitance. And if we put arrow over this like this, okay, so then this is what वेरिएबल कैपेसिटर. जैसे हमारा रेसिस्टर होता था लाइक दिस, एंड अगर हम लोग इस पे एरो पुट कर देते थे तो ये वेरिएबल रेसिस्टर यानी रियोस्टेट वर्क की तरह वर्क करता था. ठीक है, सिंबल होता था ये. ओके, सो कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 farad when coulomb of charge raise the potential of conductor by 1 volt. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर Q की जगह पे 1 volt रख देंगे, पोटेंशियल की जगह 1 volt रख देंगे, then capacitance will be 1 farad. Okay, तो आपको बोला था कि 1 farad is a very larger unit. 1 farad के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर 1 farad है, इसका मतलब है कि उसके प्लेट की जो एरिया है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर. So we can say that the length and breadth of the plates are to be 30 kilometers, 30 kilometer length and 30 kilometer breadth, which is practically impossible. That's why we do not use farad for the unit of capacitance. So in this case, we will use millifarad, microfarad, nanofarad, picofarad like this. Okay. So capacitance of an isolated spherical conductor. So keep in mind, this is not a spherical capacitor, not a spherical conductor, because we need two conductors. Okay, for to form a capacitor. That's why it is called isolated spherical conductor. But spherical conductor का जो capacitance होता है वो अलग होता है. ठीक है, उसको वो हमारे सिलेबस में है नहीं, बट अगर हम लोग को टाइम मिलेगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. दिस इज अ केस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. ओके, सो व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ स्फीयर? Q upon 4 pi epsilon naught and C is equals to Q upon V. So Q और Q cancel out हो जाएगा. 4 pi epsilon naught R we have studied in the last class. Okay, so capacitance of a spherical conductor is directly proportional to radius. We can see directly from formula, and this formula, this equation C equals to 4 pi epsilon naught is true for any conducting sphere. Okay, it is true for any conducting sphere, होलो और सॉलिड स्फीयर. होलो स्फीयर में भी चलेगा, सॉलिड स्फीयर में. अगर इसी को किसी एक मीडियम में रखा जाए, ओके, दिस स्फीयर इज इन एनी मीडियम विच हैव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन आर है, तो इन दैट केस द कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स. सो इट बिकम्स 4 pi epsilon naught into एप्सिलॉन आर into आर. ओके, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ये आपको हो सकता है कभी मतलब ऐसे ही कहीं घूमता फिरता कोई क्वेश्चन कहीं से पूछ दे, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ. ठीक है, आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन इन असाइनमेंट. व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ व्हेन द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. ओके, इट इज assumed to be this. So on that case you put the formula of 4 pi epsilon naught into r की जगह पे इसको पुट करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 700 माइक्रोफेराड कैपेसिटर जो है, माइक्रोफेराड इसकी कैपेसिटेंस होती है. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर इज प्लेट A is positively charged and plate B is neutral. Okay, so in that case, सेकेंड केस में प्लेट B को क्या किया है,
ए के नजदीक लाएंगे तो इसकी वजह से इसके ऊपर में इंड्यूस चार्ज होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. That's why there is a positive charge on the right side of plate A and the negative charge on left side of plate B. Therefore, there is a potential difference. Okay, so between A and B. Now, what happens when the plate B is connected to Earth? Okay, then what happens? Potential of the system decreases due to the sum of positive potential on A and negative potential on B. ठीक है, देखिए इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं किस तरह से होता है. इनिशियली देयर इज पॉजिटिव प्लेट ए विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके, एंड अनदर वन इज बी इज न्यूट्रल. ओके, so there is some potential difference between A and B. After that, what happens? We bring this capacitor या conductor to B towards A. ठीक, तो इसकी वजह से हम जानते हैं क्या होगा जब इसको नजदीक लेके आएंगे. तो यहाँ पर अगर पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल है, तो इसकी वजह से देयर विल बी इंड्यूस्ड चार्ज ऑन प्लेट बी. ओके, तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, कोई प्रॉब्लम? तो अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बी है इसको हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं. जैसे अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं तो हमने आपको बताया था कि जितना इसके पास में एक्सेस चार्ज होगा, बिकॉज अर्थ इज अज्यूम टू बी ह्यूज कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस. ओके, so all the positive excess charges on the plate B will move towards earth. Okay, so overall what happens? The overall charge on plate A and B is decreased. Okay, so the potential, the net potential of the system decreases due to the sum of potential on A and the negative potential on B. क्योंकि अब इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल गया, इसके ऊपर में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, इसका नेगेटिव में आएगा, एंड इसलिए टोटल जो है पोटेंशियल डिक्रीज हो गया. ठीक है, एंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल with to the same value, what happens? We have to put some additional charge on plate A so that it can again induce on charge B. Therefore, means we want to store some charge. That's why we say that the purpose of capacitor is to store charge, है ना? So in this way, this arrangement is called capacitors. ठीक है, तो ये पूरा आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग इसमें ये चार्ज को स्टोर करता है. ठीक है, पहले न्यूट्रल था, फिर उसको हमने पास लाया, इंड्यूस चार्ज हुआ, फिर उसको अर्थ से कनेक्ट किया, नेगेटिव चार्ज हुआ, पोटेंशियल डिक्रीज किया. टू मेंटेन द पोटेंशियल वी हैव टू पुट सम एडिशनल चार्ज, देयरफॉर द स्टोरेज ऑफ चार्ज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्सेप्ट. ओके, so next topic is capacitance of parallel plate capacitor. We have studied earlier. ये हम लोगों ने कल पिछली क्लास में डेरिवेशन देख लिया था. आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है किसी को, मैंने टेस्ट भी ले लिया था डेरिवेशन का. ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसको हम लोग फिर पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. तो V इक्वल्स टू Q बाई V इक्वल्स टू हमारा इतना आ गया, और C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो Q और Q कैंसिल हो जाएगा, एंड एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ऊपर आ गया. ठीक है, और अगर हम दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में अगर एप्सिलॉन R की कोई अगर डाइलेक्ट्रिक हम लोग इंसर्ट कर देंगे, देन कैपेसिटेंस बिकम्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A अपॉन D. एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपेसिटी विल बी इंक्रीज, and the capacitance of capacitor is directly proportional depends on the geometrical configuration, shape, size, and this separation between the plates. Okay, now let us see the next topic. यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अब ये बताइए कि अगर रेसिस्टर्स है, अगर रेसिस्टर्स को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेसिस्टेंस, मान लीजिए n रेसिस्टर्स है, उसको सीरीज में कनेक्ट किया, देन व्हाट विल बी द ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, द सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स.
कोई बताइए, आरती आप बताइए। अगर ढेर सारे रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? आरती यस सर। बोलिए। जय माता दी। नहीं बोलने से क्या होता है? ये भूल गए आप लोग? अभी तो हाल फिलहाल में पढ़े थे ना। यशवंत आप बताइए। यशवंत। हम्म। यस सर। अरे रेसिस्टर्स को अगर हम लोग सीरीज में रखते थे, पढ़े हैं ना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे ये R1 है, ठीक है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा? आर इक्विवेलेंट बोलिए। ये हालत है। चैप्टर 3 वी हैव स्टडीड ना, और क्लास 10 में भी R तो पढ़ते थे। equivalent is equal to N into R। जय माता दी। R1 R2 R3 N इंटू आर कहाँ से आ गया गुरुजी? हाँ सर, तीनों का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। यस वेरी गुड। आदित्य है ना ये? यस सर। ठीक है। तो ये तो होता था ना, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जब सीरीज में होता था तो। भूल गए सब कोई? और अगर पैरेलल में होता था तो R1 R2 R3 अगर पैरेलल में होता था तो आर इक्विवेलेंट क्या होता था? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे? वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R1। प्लस R2 प्लस R3। याद है सबको? एंड सो ऑन इसी तरह से होता था, याद है? यस सर। ठीक है। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल। बात बेसिकली ये है कि इस टॉपिक के ऊपर में बेस्ड अभी जो और बाकी के जो क्लासेस हैं वो भी इसके ऊपर में कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है ना, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर साल पूछता है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम लोग को एक तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, डेरिवेशन भी बहुत आसान है बेस्ड ऑन क्लास 10th। बट जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एज वेल एज सीबीएसई में भी पूछता है। तो दैट्स वाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आपको बस मुझे ये बताना था कि जो इसका जब रेसिस्टेंस जिस तरह से बिहेव करता है उसी तरह से कैपेसिटर्स भी बिहेव करता है, ठीक है। और कैपेसिटर्स के बारे में एक दो बात आपको और भी बता देता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट में मैं भूल जाऊंगा। कैपेसिटर का यूज हम लोग पहले एक तो पढ़े थे क्या, कि इट इज यूज्ड इन मतलब वो फैन है ना, इलेक्ट्रिक फैन, फिर मोटर, ठीक है। फिर और कुछ पढ़े थे। फैन में हम लोग को मालूम है क्यों होता है, मोटर में क्यों होता है, ये बता दिया था। बट इसका जो कैपेसिटर का यूज है, इसका हम लोग यूज आगे चल के चैप्टर 7 में भी करेंगे। फिर और भी इसके यूजेज पहले चैप्टर 15 कम्युनिकेशन फिजिक्स था, वहां पर भी होता था, बट उसको हम लोग जो है अभी सिलेबस में है नहीं तो उसको नहीं पढ़ना है। तो कैपेसिटर इज जनरली यूज्ड इन बैंड पास फिल्टर, ठीक है, बैंड पास फिल्टर। तो ये फिल्टर सर्किट्स में यूज किया जाता था कि सिग्नल्स को जो है फिल्टर करना है, किस सिग्नल को एक्सेप्ट करना है, किस सिग्नल को रिजेक्ट करना है, उसके लिए कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फिल्टरिंग का जो काम होता है ना, बेसिकली ये ट्यूनिंग ऑफ एंटीना में, ठीक है। दिस इज इन ट्यूनिंग ऑफ एंटीना। आप लोगों ने पहले पुराने जमाने में देखा होगा, जो क्या बोलते हैं, एंटीना को घुमाते थे फिर जाके पिक्चर आता था। होता था ना ऐसा कि गए छत पे फिर जाके, एक दंगल मूवी देखी होगी आप लोगों ने, है ना, उसमें भी इसी तरह का कुछ जो है सीन बनाया है शुरू में कि एंटीना को घुमा रहा है। व्हाट इज दैट? वो घुमाता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्चुअली वो सिग्नल को रिसीव करना है, मीन्स फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, ट्यूनिंग कर रहा है। फ्रीक्वेंसी मैच करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग करते हैं। तो जो एंटीना होता है उसके अंदर में जो सर्किट होता है, दिस इज इंडक्टर और कैपेसिटर, ये एल एंड सी, देर आर टू कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द एंटीनाज। तो उसमें सी जो है ये आपका कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर का हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी की वजह से चेंज होने की वजह से उसका कैपेसिटेंस चेंज होता है, तो ओवरऑल उसका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है वो हम लोग मैच कराते हैं, और मैच जैसे ही होता है तो ट्यूनिंग होता है और ये आपका सिग्नल कैच करता है। तो कैपेसिटर का यूज हम लोग ट्यूनिंग ऑफ एंटीना में भी करते हैं, एक चीज ये हो गया।
फिर आगे चल के हायर क्लासेस में हम लोग जानेंगे ऑसिलेटर्स होते हैं, ठीक है, वो भी जनरली फिल्टर सर्किट्स होता है, तो वहां पर भी इन सब का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके कैपेसिटर के बारे में कुछ कुछ बातें थी जो शायद हम लोग को जानना चाहिए, जो डेली लाइफ से रिलेटेड रहता है। ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया कैपेसिटर का यूजेज क्या क्या होता है। जैसे रेसिस्टर्स जो है ये वायर्स में जनरली हम लोग यूज करते हैं। रेसिस्टर्स वायर्स का होता है या किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है। उसी तरह से कैपेसिटर्स में जो है आपका ये सब फिल्टर सर्किट, ट्यूनिंग ऑफ एंटीना और बैंड पास फिल्टर, जो ये सब जो आपका ये सब मोबाइल में जो सिग्नल्स कैच करता है, टीवी में जो सिग्नल्स आता है, क्या बोलते हैं आपको, नेटवर्क जितना भी है, वो सब इसके उसमें सब में जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब में आपको कैपेसिटर जो है एक अप्लायंसेस है वो पक्का रहता ही रहता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है ये, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो एकदम खास है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो आगे चल के आपको मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिफरेंस समझाऊंगा, आएगा चैप्टर उसमें बताऊंगा। जानते हैं आप लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस? नहीं जानते हैं कोई भी? नहीं, ठीक है, सीखेंगे। हम लोग को लगता है कि दोनों सेम ही है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज में सबसे पहला जो है व्हाट फर्स्ट इसकी पहचान है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कैपेसिटर सीरीज में है। तो इसका कॉम्बिनेशन ये है कि जो फर्स्ट वाला प्लेट है उसका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे पॉजिटिवली चार्ज है एंड इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, ठीक है, पॉजिटिव इसका मतलब यही है। तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि इसको आप ऐसे समझिए, इफ देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस V, ओके, बिटवीन दीज टू टर्मिनल, तो अगर यहाँ पर V है तो इस बीच में कोई भी डिवाइस नहीं है, कोई भी डिवाइस नहीं है, कोई भी डिवाइस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। और यहाँ पर जीरो पोटेंशियल, दैट मीन्स इट मीन्स यहाँ पर इस जगह पे कोई डिवाइस नहीं, यहाँ पर जीरो पोटेंशियल होगा। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि दोनों प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ हो गया यहाँ पर, तो इसको हम लोग V1 बोल देंगे, ठीक है। फिर इस दोनों प्लेट्स के बीच में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, ठीक है। और यहाँ पर इस दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कनेक्ट कर रहा है, जो भी कनेक्टिंग वायर्स है। तो यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ताकि यहाँ पर इस दोनों के बीच में क्या हो जाए, पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो यहाँ इंड्यूस्ड जो भी नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज होगा एंड इक्वल इन अमाउंट। यहाँ पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पर नेगेटिव होगा, सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर जीरो एंड जो टोटल V वोल्टेज था वो यहाँ पर ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 0 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कनेक्शन है। तो इसकी पहचान क्या है कि द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट प्लेट शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड प्लेट। ध्यान से समझिएगा इस फिगर को। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट प्लेट शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड प्लेट। ध्यान में आ रहा है सबको? देखने में फिगर देखिए, ये फर्स्ट वाला प्लेट है, ये उसका कैपेसिटेंस है C1, उसका ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो दिस नेगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू, ठीक है, द फर्स्ट प्लेट विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसी तरह से C1 का नेगेटिव प्लेट C2 के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। सेम वे C2 का नेगेटिव प्लेट C3 के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है ये सीरीज में कनेक्टेड है। आगे बात समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो कैसे समझेंगे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है? तो बैटरी से हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे या चार्ज निकालेंगे, ठीक है, और फिर ये देखेंगे वो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है। तो फर्स्ट वाले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है एंड सो ऑन, देन इट इज सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे समझ सकते हैं
कि जो नेट चार्ज होगा C1 पे भी 0 होगा और नेट चार्ज ऑन C2 भी 0 होगा. वी हैव स्टडीड अर्लियर, है ना. द टोटल चार्ज ऑन C1 एंड C2 इज 0. ऑल द कैपेसिटर के पास टोटल चार्ज 0 होता है. ठीक है. तो इस दोनों के बीच में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी. जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव कैंसल आउट करके. ठीक है. तो जो टोटल हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज एंड इस दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज, तो इस दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर. ठीक है. सो वी कैन से दैट, आपको ये ध्यान में रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज जो है वो सब पे सेम रहेगा, ऑल द कैपेसिटर पे. एंड दूसरी बात क्या होगा, V changes, V does not remain same, it changes. ओके, सब पे. ठीक है. जैसे वहां पर आप याद कीजिए जब रेसिस्टर सीरीज में होता था. ठीक है. जब रेसिस्टर सीरीज में होता था तो इसमें करंट क्या है, सेम होता था और पोटेंशियल ड्रॉप चेंज होता था. तो करंट की जगह यहाँ पर चार्ज और पोटेंशियल की जगह पे V रहेगा. ठीक है. एकदम उसी तरह से. ठीक है. तो नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, अब V इक्वल्स टू V1 प्लस V2. ठीक है. V इक्वल्स टू V1 प्लस V2. ओके. तो V1 की जगह व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इन द कैपेसिटर, we know that Q इक्वल्स टू CV. so what happens, V इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपॉन C. कोई दिक्कत? so we can write Q V1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन C. ओके. एंड V2 की जगह पे क्या लिखेंगे, V2 potential drop across the parallel plate, this capacitance C2. What will be the V2? Q2 upon C. Yes, Q2 upon C. Sorry, Q2 upon C2. ये यहाँ पर C1. V1 equals to Q1 upon C1. V2 equals to Q2 upon C2. Okay. Now we know that in series combination charges are same. So Q1 and Q2 are same. We can write Q in place of Q1 and Q in place of Q2. Okay. So from here we can say that this Q into 1 upon C1 plus 1 upon C2. Okay. So this is the total potential. Now if we assume the overall combination of these two capacitors as a single capacitor, okay, means we can assume these two capacitors as single capacitor like this. So its capacitance will be C equivalent and the potential difference will be total V. Okay. So in this case we can say that this V is equals to, and the charge will be same, V equals to what, Q upon C, because C equals to Q upon V. ठीक है. तो ये टोटल पोटेंशियल हो गया. ठीक है. So this C is C equivalent, overall capacitance of the two combination. ठीक है. V equals to Q upon C equivalent हो गया यहाँ से. यहाँ पर हम लोग V की जगह पे लिखेंगे Q upon C equivalent, and this is equals to Q into 1 upon C1 plus 1 upon C2. Okay. So this Q and Q will be cancelled out. So we are left with only 1 upon C equivalent is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2. ठीक है. Similarly we can, तो यही आपका इसका ये रिजल्ट यहाँ पर आया हुआ है. If there are three capacitors, we can move it towards like this. 1 upon C equivalent equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. ठीक है. इस तरह से ये हो सकता है थ्री कैपेसिटर्स के लिए. यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं है? No, sir. ठीक है. So for n capacitors we can write it as 1 upon C equivalent equals to, है ना, 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. ये आपका यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है फॉर n कैपेसिटर. ठीक है. ये यहाँ
एनी प्रॉब्लम किसी को यहाँ समझने में? अगर n कैपेसिटर से सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा रेसिस्टर्स में आपका जब n रेसिस्टर्स कनेक्टेड थे, ठीक है, R1 R2 R3, तो ये Rn अगर मान लीजिए, तो वहां पर R इक्विवेलेंट क्या होता था सीरीज में? R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn तक, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर अगर सीरीज में तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। समझ आ रही बात सबको? अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कैपेसिटर में रेसिस्टेंस वाले का जस्ट रिवर्स वाला फॉर्मूला यूज होता है, प्रॉपर्टी यूज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इसी में एक चीज देखिए, अगर सारे के सारे कैपेसिटर्स सीरीज में तो कनेक्टेड है बट दे आर ऑल आर इक्वल, अगर ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, इसी तरह से अगर ढेर सारे n कैपेसिटर्स कनेक्टेड है तो इट विल बी 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c टू n टाइम्स, ठीक है। सो ये पूरे को हम लोग क्या लिखेंगे? C आपका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2n टाइम्स, है ना। तो 1 1 1 अगर 5 बार है तो 5, 10 बार है तो 10, n बार है तो n, तो n/c, and this is here 1/c equivalent. So in this case we can see that this C equivalent capacitance will be C/n. जैसे आप याद कीजिए वहां पर रेसिस्टेंस जब पैरेलल में होता था तो R/n होता था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहाँ पर C इक्विवेलेंट सीरीज में है तो C/n। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपका ढेर सारे कैपेसिटर्स जब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, वो जो सबसे छोटा है उसमें उससे भी छोटा होगा, ठीक है। इसको हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे प्रैक्टिकली। जब ढेर सारे कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनमें से जो जिसकी कैपेसिटी सबसे कम होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी छोटा होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में जस्ट उसका उल्टा आपको ध्यान में रखना है। वहां पर चार्ज क्या होता था? सेम होता था। तो यहाँ पर चार्ज जो है इट विल बी डिफरेंट चार्जेस ऑन डिफरेंट कैपेसिटर, और वहां पर वोल्टेज डिवाइड होता था, तो यहाँ पर वोल्टेज विल रिमेन सेम। ओके, इन कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो पहचानेंगे कैसे कि कैपेसिटर्स पैरेलल में है? तो उसको पहचानने के लिए हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर है, इन सब का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, इस सब का पॉजिटिव चार्ज आपको एक जगह पर मिल रहा होगा एंड विल बी कनेक्टेड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। समझ गए सब कोई? वहां पर क्या था? फर्स्ट वाले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड था। यहाँ पर क्या है? सबका पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड होगा एक जगह पर, ठीक है, और सबका नेगेटिव भी एक जगह पर कनेक्टेड होगा एंड फाइनली कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर, यहाँ तीन कैपेसिटर है, C1 C2 C3, और सबका देखिए पॉजिटिव चार्ज, सबका पॉजिटिव चार्ज, सबका पॉजिटिव चार्ज एक साथ कनेक्टेड है, और सबका नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से अगर मान लीजिए n कैपेसिटर्स होंगे, ठीक है, तो सबका n कैपेसिटर्स का पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे, n कैपेसिटर्स का नेगेटिव चार्ज एक जगह पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? एनी प्रॉब्लम? नो बोलिए। सर। ठीक है। तो नाउ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, इसको हम लोग देखते हैं, इसका डेरिवेशन क्या। आपको अभी बताया कि चार्ज विल रिमेन सेम, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी द चार्ज on capacitor C1? So we know that this charge Q1 is Q equals to C into V. Okay, C is what? C1, और potential same रहेगा, चार्ज डिफरेंट होता है। Q2 हमारा कितना होगा? Q2 is equals to C2 into V. Okay, एंड जो यहाँ से बैटरी से, यहाँ पर एक बैटरी एज्यूम करते हैं, इस बैटरी से जो भी हमारा चार्ज निकल रहा होगा, दिस चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among this Q1 and this Q2. So we can say that this total charge Q is equals to Q1 plus Q2. Okay. So from here
व्हाट इज Q? अभी हमने देखा यहाँ से Q की जगह C1V और Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V. So we can write Q1 equals to C1V and Q2 equals to C2V. तो Q equals to क्या हो गया यहाँ से Q1 plus Q2. तो और हम लोग Q equals to हम लोग पूरा ओवरऑल कैपेसिटेंस जितने भी पैरेलल में है उन सब का हम लोग क्या मान लेते हैं, उसका जो टोटल चार्ज हो जाएगा दिस इज Q. ओके, and equivalent capacitance is C equivalent and potential is always same throughout, so this is V in parallel. So Q equals to CV. ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं Q1 की जगह पे क्या हो गया C1V, Q2 की जगह C2V. ठीक है, तो C into V equals to C1 into V plus C2 into V. ठीक, तो यहाँ से V आपका कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C equals to C1 plus C2. So if so many capacitors are in parallel, okay, if capacitors are in parallel, then equivalent capacitance will be what? C1 plus C2 plus C3. जो वहाँ रेसिस्टर्स में सीरीज में होता था वो फॉर्मूला यहाँ पर आपका आ जाएगा. ठीक है, इतना डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, बट मेनली आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझने थे, फॉर्मूला आपको आना चाहिए और आप इसके बेस पे क्वेश्चन कर सकें. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं. इफ देयर आर n कैपेसिटर्स which are connected in parallel, then equivalent capacitance will be what? C equals to C1 plus C2 plus C3 and so on up to Cn. Okay, if all are equal means C1 equals to C2 equals to C3 equals to dot 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 Cn equals to, अगर हमने सबको C मान लिया, सपोज सबको C मान लिया, okay, then in that case C equivalent is equals to C plus C, C1 की जगह C, C2 की जगह C, ऐसे ही कितनी बार? 2n times. Okay, so what happens? The total capacitance of the capacitor, the circuit C equivalent is equals to n into C. तो ये देखिए, ये आपका कब होता था? जब रेसिस्टर सीरीज में होता था, लेकिन यहाँ कैपेसिटर जब पैरेलल में है तो n into C हो रहा है टोटल रेसिस्टेंस. ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है. ठीक है, इसी के बेस पे जस्ट देखिए 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, उसको फटाफट से हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 होगा. ओके, तो देखिए इसमें बोल रहा है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. ओके, तो 3 कैपेसिटर है, तीनों कनेक्टेड है सीरीज में. ठीक, तो सीरीज वाला अभी आपको बताया कि दिस 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये तीनों इक्वल है. ठीक है, सबका कैपेसिटेंस सेम है. तो आपको बताया था अभी सीरीज में C इक्वल्स टू C/N, याद है फॉर्मूला. तो यहाँ से C इक्विवेलेंट आपको कितना हो जाएगा? हर एक का कैपेसिटी कितना है? 9, और कितने रेसिस्टर हैं? 3. सो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 पिकोफैराड. ओके, क्लियर है सबको? शॉर्टकट अभी आपको बताया ना ये चीज, या फिर आप डायरेक्टली 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 करेंगे तो वहां से भी आपको 3 आएगा आंसर. ठीक है, नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट. ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. ठीक है, तो हर एक के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो हम लोग जानते हैं कि ये तीनों कैपेसिटर जब हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है दिस C1 C2 C3, ठीक, और सब पे इक्वल है. ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं यहाँ पर पोटेंशियल V1 होगा और यहाँ पर V2 होगा और यहाँ पर V3 होगा, बट चार्ज विल रिमेन सेम. तीनों पे चार्ज क्या होगा? सेम होगा. ओके, तो हम लोग को पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ज निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो चार्ज क्या होगा? Q इक्वल्स टू C इंटू V होता है. ठीक है, तो C आपका टोटल कितना है? टोटल C कितना है? 3 पिकोफैराड, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 120.
तो ये कितना हो गया आपको 3 इंटू 120 360 हो गया, है ना। दिस इज पिको कूलम्ब, ठीक है। तो ये जो चार्ज है सब पे सेम हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल वोल्टेज था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक के ऊपर में ये टोटल आपका टोटल चार्ज हो गया, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में आप क्या कीजिए, सब जगह पे चार्ज क्या है, सेम है, ठीक है। तो और सबका कैपेसिटेंस मालूम है, तो यहाँ से हम लोग V इक्वल्स टू Q1 अपॉन C1 कर देंगे। समझ आ रही बात। Q1 आपका सब जगह सेम ही होगा, टोटल चार्ज जो है वही सब यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो इसका चार्ज डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस, तो यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा। इसका चार्ज यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस C2 आपको दिया हुआ है, और इसका भी उसी तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर। उसी तरह से आपको 7th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 3 कैपेसिटेंस 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. What is the total capacitance? Parallel में अभी हमने देखा था कि सब ऐड हो जाते हैं, C1 plus C2 plus C3, 4 plus 3 plus 2. And determine the charge on each capacitor if the combination is connected to 100 volt supply. ठीक है, इसको आप क्योंकि टाइम हो गया है तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और ये 8th वाला भी इसी तरह से है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ प्लेट्स दे रखा है, सेपरेशन दे रखा है। तो हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं, C इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट A बाई D। इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से कैपेसिटेंस निकल जाएगा, और आपको C दिया हुआ है, ठीक है। और वोल्टेज गिवन है क्वेश्चन में 100 वोल्ट, तो चार्ज हमारा हो जाएगा Q इक्वल्स टू C इंटू V, ठीक है। तो ये 6th, 7th और 8th क्वेश्चन ये तीनों आप लोग ट्राई कीजिएगा, ओके। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया है, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। Thank you, sir.